Okay, good morning, all of you. Can you hear me? Sorry, good afternoon. Anyone? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Good, good, good. So today we are going to start again, and in the today's lecture, we will be knowing the mathematical parts of it. So before going to the mathematical part, I'm going to complete the remaining parts of the yesterday. Okay. So we have talked about some basic things about centrifugal pump already. That what is centrifugal pump? What are the main parts? Okay. Then we have studied the working principle also, and the necessity of the priming also. So today we are going to discuss the application of the centrifugal pump. So you can see the number one application is to use in the buildings or pumping the general water. It is the basic application, you know already. And according to the design of the centrifugal pump, it is useful for the pumping sewage and slurries also. It is also used in the fire protection system. Okay. If we talk about the beverage industry, it is used to transfer juice, bottled water, etc. Okay. In the dairy industry, it is used to transfer dairy products like milk, flavored milk, buttermilk. Okay. And it has various applications in the various industries like manufacturing, industrial, chemicals, pharmaceutical, food production, aerospace. Okay. And in the oil energy industry, it is used to pump the crude oil also. Okay. So these are the application. I think we should know about it. So there are some advantage of the centrifugal pump also. It is Sir, simple. स्क्रीन पीछे करिए तो सर थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना. I will share the notes in the Google Classroom now. Don't worry. I have also shared you the Google Classroom code. Please join this. I will share this note. Okay. Okay, sir. Okay, sir. It is very simple. This is the first advantage. Okay. It don't require any valves or moving parts also. This is the again advantage, which makes it easy to produce many with many different materials. Okay. The most important advantage is its output, which is very steady and consistent. Okay. So these are the advantages. So there are some disadvantages also. As we know, centrifugal pump uses rotation instead of suction to move water. Okay. So therefore, it has no suction power. Okay. Because in centrifugal pump, the rotation needed. So this means that a centrifugal pump must be put under the water. Okay. It should be under the water and it should be primed before it will move water. Okay. So these are the disadvantages. It is very simple. So now coming to the mathematical part. Work done by the centrifugal pump. Okay. So its velocity triangle is very similar to the turbine. Okay. So in centrifugal pump, the work done is done by the impeller. Okay. This is the main thing. And if we draw the velocity triangle, okay, it is similar to the turbine. Okay. So in the velocity triangle, the inlet will be the triangle at the inlet will be on the impeller, and similar to the impeller again, the triangle will be drawn on the outlet of the impeller. Okay. So in this case, the water enters the impeller radially. Okay, at inlet, and it has absolute velocity of water at inlet, which make 90-degree with the direction of motion. It is the main thing. You can see also this is the velocity triangle. Okay, this absolute velocity is making angle 90-degree. Okay, at the inlet of the impeller. So the V1 will have two components. I told you already. VF1 here
and U1. So here alpha is the 90 degree, okay, and there will be no relative velocity here. Again, on the outlet of the impeller, okay, so it is the V2, so it has two components, VF2 and U2, and its relative velocity will be here, which makes phi angle. So you have to understand how to draw that triangle because this is difficult type, okay. So सर yes, ये डायग्राम फिर से बता दें सर, कौन कौन कैसे कंपोनेंट टूटा हुआ है, नहीं समझ। okay. So here you can see, okay, let me annotate it. Format will be blue, take blue. So here water enters the impeller radially at the inlet. This is the inlet, okay, and this is the outlet. So radially means what? V1 will make angle 90 degree with the direction of motion. This is the 90 degree, okay. So V1 will be have two components, U1 and VF1, velocity of flow, and the sorry. Here VW1 will be 0, okay. The one component will be VF1, but the VW1 will be 0, okay. So this is typical, so please listen. Because the water enters in the impeller at inlet radially, so here the absolute velocity of water at inlet makes an angle of 90 degree with the motion of the impeller. So therefore the alpha will be 90 degree and VW1 will be 0. So here only one component will be there at the inlet, and also relative velocity at the inlet will not be there. So this is the triangle. The first triangle, this is V1, this is VF1, this is U1, this is alpha, and this is the theta. Again at the outlet, okay, this is the V2 which will make beta, okay, this is VF2, okay, and this is VW2. So here U2 will be greater than the VW2. This is the thing. Again, this is the VR2, the relative velocity, which will make 5. So this is the triangle, okay. Again, if we let n is the speed of impeller, d1 is the diameter of impeller, u1 is the tangential velocity of impeller, okay. So here u1 will be, we know already that pi dn by 60. These are the simple thing, I will not tell you, okay. So here, as I am saying again and again, that waters enter the impeller radially, okay. So therefore angle alpha will be 90 degree and VW1 will be 0. So as we already discussed that the centrifugal pump is the reverse of a radial inward flow Dixon turbine. Okay, but in the case of radially inward flow Dixon turbine, the work done by the water on the runner per second per unit weight is given by the equation this. You can see on the screen. Okay, so we will use that equation, this equation. Okay. So we will take the minus. So this is the work done by the radially inward flow reaction turbine, and it is the reverse in the case of centrifugal pump. So we will take the minus, okay. Then the equation will become like this: 1 by G VW2 U2 minus VW1 into U1. So what we have to do, only take the minus sign, okay, and use the work done in the case of turbine. You will get the formula, because the centrifugal pump is the reverse of the radially inward flow reaction turbine. Okay. I think this formula is not typical. Wait, let me raise this. So this formula came
but here VW1 will be 0 na, so therefore the formula will be this 1 by G VW2 into U2, and work done by impeller on water per second will be this, and the value of the discharge will be same like the turbine ID1 V1. एक्सप्लेन कीजिए ना सर, समझ नहीं आ रहा सर इसे। yes please. समझ नहीं आ रहा सर इसे, आप टाइप बोल रहे हैं, एक्सप्लेन करके बताइए ना। Okay, so I'm going to talk in the simple way. Okay, let me erase this. तो हुआ क्या, मतलब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है रिवर्स है, जो हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन, याद है, रेडियली इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन। इस टरबाइन का वो रिवर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो क्या होगा कि रेडियली इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केस में हम लोग को ये फॉर्मूला मिला था, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस साइन ले लेंगे, माइनस साइन लेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मूला मिल जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए वर्क डन के केस में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हम लोग को पता चला कि रेडियली हम लोग वाटर को इंटर करने दे रहे हैं ना सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पे, तो क्या हो रहा है कि VW1 तो 0 हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर VW1 पुट कर देंगे एज ए 0, तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ये फॉर्मूला मिलेगा, हम लोग को फॉर्मूला मिल जाएगा ये वाला, देखो यही है हम लोग का वर्क डन का फॉर्मूला पर यूनिट वेट के केस में। ओके, अगर वाटर पर सेकंड बात करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला ये हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मेनली यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। और डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते ही हैं कि पाई D1 V1 इंटू VF1 होता है, या पाई D2 V2 इंटू VF2 होता है, ये कुछ चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे V1 V2 क्या है, वही विड्थ होता है, अगर इम्पेलर है तो इम्पेलर, रनर है तो रनर, है ना। VF1 क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट, VF2 क्या होगा, एट द आउटलेट, इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कोशिश करो। ये फॉर्मूला समझ में आया, कैसे आया? मेरा पैड नहीं, ये जो W/G है, ये वेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सही। ये वेट ऑफ वाटर को कर रहे हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे निकालना है हम लोग को वर्क डन बाय इम्पेलर ऑन द वाटर पर सेकेंड, इसीलिए हम लोग को वेट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो सर ये ऊपर वाला क्या है, 1/G? ये देखो दिखा रहा हूँ मैं, ये तुम्हारा है वर्क डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, पर यूनिट वेट ऑफ वाटर है, अगर यूनिट वेट ऑफ वाटर हटाएंगे तब W वहां रह जाएगा, ठीक है, समझे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस तरह से कि अगर हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं इम्पेलर का वाटर के ऊपर पर सेकेंड, ठीक है, अगर पर यूनिट वेट बात करेंगे तो W नहीं रहेगा। अगर ये पर यूनिट वेट हटा दें हम लोग तो W को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, W मतलब वेट ऑफ वाटर को, ठीक है। बस ये दो चीज ध्यान रखने का है। ओके, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने कुछ डेफिनेशन को कलेक्ट किया है, जैसे कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ हेड्स एंड एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो व्हाट वुड बी द सक्शन हेड, सक्शन हेड क्या होता है भाई, है ना। सक्शन हेड को हम लोग पहले डिनोट करते हैं HS से, H मतलब हेड, S मतलब सक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एक वर्टिकल हाइट है, वाटर सरफेस के ऊपर जो टैंक लगा हुआ ना उसका एक वर्टिकल हाइट है पानी का, बस ये ध्यान रखना। डिलीवरी हेड क्या होगा, मान लो कि पानी हम लोग को जहां पहुंचाना होगा, ठीक है, तो उसका हाइट तुम्हारा सरफेस से कितना दूर पे है, तो वो हो गया तुम्हारा डिलीवरी हेड।
स्टैटिक हेड क्या होगा, दोनों को सम कर देंगे, सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को, तो हम लोग को स्टैटिक हेड मिल जाएगा। फिर बात करेंगे मैनोमेट्रिक हेड। मैनोमेट्रिक हेड थोड़ा सा है जानने का चीज। तो ये हेड ऐसा है कि जहां पर हम लोग को सेंट्रीफ्यूगल पंप को काम करना है। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले तो हेड हम लोग का निकलेगा इम्पेलर से, लेकिन कुछ हेड तो लॉस भी होगा ना पंप की वजह से, तो उन दोनों को माइनस कर देते हैं हम। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, HM इज इक्वल टू हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर टू द वाटर माइनस लॉस ऑफ हेड इन द पंप। कुछ हेड तो लॉस भी होगा ना, तो फॉर्मूला हम लोग का इस तरह से आता है, अगर लॉस को कंसिडर करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे लॉस को तो ये फॉर्मूला होगा। ओके, सो इस ओवरऑल, लॉस को कंसीडर, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? इस कंडीशन में लॉस को कंसीडर नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा यही फॉर्मूला रहेगा। कंडीशन तो होगा ना सर, इस कंडीशन में कंसीडर करना है, इस कंडीशन में नहीं करना है। हाँ, वो दिया रहेगा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप लॉस कंसिडर नहीं करें। अगर नहीं करने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर करने बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और लॉस ऑफ हेड तुम्हारा दिया रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल एक और फॉर्मूला है इस तरह से, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ पंप, हम लोग क्या कर देंगे, बर्नौलीज का इक्वेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, माइनस टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ पंप। तो 1, 2 और 3 फॉर्मूला निकल के आता है तुम्हारा मैनोमेट्रिक हेड का। ओके, बर्नौली से हम लोग को पता है, तो हम लोग 2 सेक्शन पर लगा सकते हैं, तो ये चीज याद रहेगा ये वाला, है ना, कैसे इसको लगाएं, P0/ρg प्लस V0² / 2g प्लस Z0, या आउटलेट O मतलब आउटलेट, माइनस PI/ρg प्लस BI² / 2g प्लस ZI, I मतलब सर जेड क्या बोले थे सर? ये वाला यस सर, जेड है क्या? ZI, क्या जेड मतलब हो गया डेटम हेड, मतलब कि तुम्हारा रेफर ये बेस से, तुम्हारा बेस से कितना ऊंचाई पे है वो चीज, क्या है? ओके, मतलब बेस से जितना ऊंचाई पर है ना। हाँ, उसको बोलते हैं डेटम। ओके, उस डिस्टेंस को बोलते हैं, कितना हाइट पे कितना डिस्टेंस पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ फार्मूलाज याद करना होगा आपको, ठीक है, उसको आप लोग क्या करो, रूम में एक चार्ट चिपका दो और फार्मूला को लिखो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपको फार्मूला याद भी रहेगा, है ना। तो फिर उसी तरह से उसका बताया गया है कि कौन कौन सा पार्ट क्या होता है, P0/ρg प्रेशर हेड होता है, वेलोसिटी हेड, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, जहाँ प्रेशर का दिया रहता है तो उसको प्रेशर हेड बोलते हैं, जहाँ वेलोसिटी का पार्ट होता है उसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं, ये सब पता है ना। तो इस तरह से मैनोमेट्रिक हेड में अगर हम लोग सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, ETC ऐड कर दे, फ्रिक्शनल हेड लॉस ऐड कर दे, ठीक है, फिर फ्रिक्शनल हेड लॉस इन डिलीवरी पाइप ऐड कर दे, सक्शन पाइप ऐड कर दे, तो ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सम हो जाएगा, हेड, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस फ्रिक्शनल हेड लॉस इन सक्शन, फिर प्लस फ्रिक्शनल हेड लॉस इन द डिलीवरी पाइप, फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द डिलीवरी पाइप, वेलोसिटी हेड। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये भी एक फॉर्मूला आता है मैनोमेट्रिक का। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा हम लोग को उस तरह से बस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए कुछ एफिशिएंसीज भी है सेंट्रीफ्यूगल पंप के। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या होता है, पावर ट्रांसमिट होता है कहाँ से, शाफ्ट से, इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से पंप के शाफ्ट पे जाता है पावर, है ना। उल्टा होता है, टरबाइन में क्या होता है, टरबाइन के शाफ्ट से इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट में हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, जिससे पावर का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन पंप के केस में ये उल्टा होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के शाफ्ट से जाएगा ये पंप के शाफ्ट पे, उसके बाद जाएगा इम्पेलर पे। ठीक है, तो फिर इम्पेलर के बाद क्या होगा, वो पावर कहाँ जाएगा, पानी के ऊपर जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि पावर कम होने लगता है, डिक्रीज करता है, शाफ्ट के टरबाइन से इम्पेलर पे। ओके, सॉरी, शाफ्ट के पंप से इम्पेलर पे, उसके बाद लास्ट में वाटर पे जाएगा ये, तो वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग एफिशिएंसी को निकालते हैं। तो पहला एफिशिएंसी क्या है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, दूसरा है क्या, मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीसरा क्या, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो पहला चीज है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये क्या है, ये एक रेशियो है मैनोमेट्रिक हेड टू हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, मैनोमेट्रिक हेड बाय हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर। ओके, तो उसका फॉर्मूला इस तरह से है, GHM/VW/U2। ठीक है, और ये चीज याद रखेगा हमेशा कि पावर जो इम्पेलर पे होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, पावर हम लोग अगर देते हैं वाटर को उससे ज्यादा ही होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो रेशियो है पावर का जो वाटर को दे रहे हैं टू द पावर एट द पावर ऑफ पंप एट द आउटलेट, ये एक तरह का मैथमेटिक एफिशिएंसी हो सकता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो पावर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पावर का फॉर्मूला ये रहेगा, पावर गिवन टू वाटर एट आउटलेट ऑफ पंप विल बी WHM/1000 किलोवाट। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको। अगर इम्पेलर पे बात करते हैं हम लोग, तो वर्क डन बाई इम्पेलर पर सेकेंड बाई 1000 किलोवाट। ठीक है, तो वर्क डन जो आता है हम लोग का, वर्क डन बाई इम्पेलर ऑन वाटर पर सेकेंड पर यूनिट वेट को लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर ये रहेगा WG इंटू VW2 इंटू U2 रहेगा, उसको 1000 डिवाइड कर दीजिए, आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये पावर तो निकल गया, तो हम लोग का मैथमेटिक एफिशिएंसी क्या होगा, मैथमेटिक एफिशिएंसी हो जाएगा हम लोग का पावर गिवन टू वाटर बाई पावर एट द इम्पेलर, जो फॉर्मूला पिछले स्लाइड में मैंने बताया, उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको जो कंटेंट आएगा वही आपका मैथमेटिक एफिशिएंसी होगा। तो मेन चीज क्या याद करने का है, ये याद करने का है ये चीज। ठीक है, कि अगर हम लोग पावर देंगे वाटर पे तो वो कितना होगा, और पावर देंगे इम्पेलर पे तो वो कितना होगा। ठीक है, फिर इन दोनों का रेशियो होता है मैथमेटिक एफिशिएंसी। ओके, इसको क्या कीजिएगा, मैं नोट्स को शेयर करूंगा गूगल क्लासरूम में, उसको लिखिए बैठ के रूम पे, तो लिखने से है ना और दिमाग में जाएगा। अभी तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है ना, तो नहीं लिख रहे हैं, बस सुन रहे हैं, तो वो एक बार सुनेंगे तो फिर भूल जाएंगे आप लोग, उसको लिखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो था मैथमेटिक एफिशिएंसी। इसी तरह से मैकेनिकल एफिशिएंसी है। ठीक है, कि जो पावर रहेगा शाफ्ट पे, पंप के शाफ्ट पे जो पावर रहेगा वो ज्यादा होता है पावर जो इम्पेलर पे रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगा पावर एट द इम्पेलर टू द पावर एट द शाफ्ट, बस इसी को यूज कर देना। जैसे हम लोग टरबाइन में कर देते हैं, पावर एट द रनर टू द शाफ्ट पावर करके। ठीक है, रनर पावर बाई शाफ्ट पावर, याद है टरबाइन में क्या था, मैकेनिकल एफिशिएंसी रनर पावर बाई शाफ्ट पावर था। तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, इम्पेलर पावर बाई शाफ्ट पावर हो जाएगा। ठीक है, तो पावर एट द इम्पेलर क्या होगा, मैंने बताया पहले ही, वर्क डन बाई इम्पेलर पर सेकेंड बाई 1000 होगा, है ना। तो इस तरह से ये निकल जाएगा, बस उस फॉर्मूला को डाल देना है, साफ पावर को बस हम लोग SP लिख देंगे। अब लास्ट है ओवरऑल एफिशिएंसी, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ द पंप टू द पावर इनपुट टू द पंप। तो कितना पंप पावर आउटपुट में जा रहा है और कितना पंप पावर में इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो आउटपुट पे जो पावर हो कितना होगा, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड इनटू HM, ओके, बाई 1000, दैट मीन्स WHM/1000। अब पावर इनपुट कितना हुआ पंप पे, इसका मतलब क्या हुआ, कितना पावर सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा, मतलब साफ पावर हो गया। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को ये चीज आएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ये भी नहीं पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी को इक्वल टू होता है मैथमेटिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग को ये निकल जाएगा। ठीक है, टरबाइन से बहुत मिलता जुलता है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया है बुक से ही, 19.1 प्रॉब्लम है ये।
द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर, इसको आप लिखिए, कॉपी सब वगैरह उठाइए, इसको लिखिए, हम लोग इसको बनाएंगे भी स्क्रीन पे। सब कॉपी पेन उठाइए, लिखिए इसको, क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे बनाया गया है ये, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फिर लिखने में बताइए क्वेश्चन लिखे कि नहीं आप लोग। ओके, मुझे लग रहा है आप लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, कम से कम जो जो गिवन है उसको लिखिए। उसके बाद हम लोग इसको बोर्ड पे भी बनाएंगे, स्क्रीन पे ही, ओके। इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। क्वेश्चन हटा दिए सर। क्वेश्चन लिखा नहीं आप लोग ने? नहीं लिखे थे सर। 1 मिनट फिर से शेयर कर रहा हूँ, लिखिए तो जल्दी से, ठीक है, मैं अटेंडेंस लूंगा क्योंकि नहीं तो भूल जाऊंगा। स्क्रीन दिख रहा है ना ये? ये सर सर। लिखिए इसको। मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, क्योंकि टाइम नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। हो गया सर, हो गया। ओके। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं एक व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। क्या क्या दिया हुआ है बताइए, गिवन पोर्शन। D1 D2 दिया हुआ है सर। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट।
कीबोर्ड से मैं ट्राई करूंगा लिखने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़िए जरा, क्या क्वेश्चन था, सॉल्व करते हैं इसको स्क्रीन पे। सर उसी स्लाइड में सॉल्व करते हैं ना। उस पे फिर ये व्हाइट बोर्ड नहीं आ पाएगा ना, ये व्हाइट बोर्ड ये लाना। तो सर ब्लैंक पेज था ना वो। अच्छा हाँ हाँ, सही 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 बोला, रुको 1 मिनट करता हूँ। उसी स्लाइड में ब्लैंक पेज चाहिए ना। ये दिख रहा है ब्लैंक पेज, ठीक है। और शेयरिंग स्क्रीन में ये हो जाएगा, फिर ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन क्या आएगा पढ़िए जरा, पहले क्या गिवन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए जल्दी, 6 मिनट टाइम है, फिर उसके बाद अगला क्लास में आप लोग को जाना होगा। सर इंटरनल डायमीटर ओके चलिए, दिया मान हुआ है एक्सटर्नल D1 कितना दिया हुआ है, बोलिए। 200 mm सर। 200 mm, ओके। फिर उसके बाद D2 400 mm। D2 दिया हुआ हम लोग का 400 mm। 400 mm। उसके बाद हम लोग का दिया होगा पंप जो N दिया है ना, N दिया हुआ है, मेरे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। 1200 RPM, ओके। फिर हम लोग का दिया हुआ है कि द वेन एंगल्स ऑफ द इम्पेलर एट द इनलेट एंड आउटलेट एट 20 एंड 30 डिग्री। दैट मीन्स थीटा दिया हुआ है, मैं थीटा ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। थीटा दिया हुआ है हम लोग का 20 डिग्री, और उसके बाद फाई दिया हुआ है, मैं फाई को ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो सिंबल खोजूंगा तो टाइम नहीं है। वो दिया हुआ 30 डिग्री, ओके। फिर दिया हुआ हम लोग का BF1 इक्वल टू BF2। वाटर जो है रेडियली इंटर कर रहा है ना, तो अल्फा हो जाएगा हम लोग का 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिर उसके बाद हम लोग का अगर 90 डिग्री पे जा रहा है तो VW1 हो जाएगा हम लोग का 0, 0। ओके। फिर क्या लिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट है, मतलब VF1 इज इक्वल टू VF2 हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये सब दिया हुआ है, ओके। तो वैसे ट्राइंगल जो मैंने बताया वैसे बना लेने का है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है वर्क डन बाय द इम्पेलर पर यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, का फॉर्मूला था, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था उस केस में, VW2 इंटू U2 बाई था G, समझा जी, है ना। तो हम लोग को क्या क्या पहले निकालना पड़ेगा, हम लोग को VW2 चाहिए और U2 भी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग U2 कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले U1 U2 निकाल लेते हैं। तो U1 का फॉर्मूला क्या था, U1 का फॉर्मूला सिंपल है, इनलेट पे अगर होगा तो पाई यूज करेंगे, मतलब 3.14 मल्टीप्लाई हम लोग का हो जाएगा DN, पाई DN/60 होता है फॉर्मूला। तो डायमीटर D1 लेंगे इंटू N लेंगे, बाई 60 कर देंगे। इस फॉर्मूला से हम लोग U1 निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, U2 निकालेंगे, ऐसे ही करके 3.14 मल्टीप्लाई D2 मल्टीप्लाई N दिया हुआ है ही, बाई 60 कर देंगे, तो हम लोग का U2 निकल जाएगा, ओके। अब U2 है लेकिन VW2 हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा V2 निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब निकलेगा ना। अब एंगल अगर दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ना, हम लोग उसका यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा का यूज करेंगे। ट्रायंगल नीचे का क्या बन रहा है, वो बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है नीचे में, ठीक है ना। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, VF1/U1 हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा
इज इक्वल टू हो जाएगा VF1 बाई U1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का VF1 निकल जाएगा। U1 का वैल्यू निकाल दिए हैं, tan थीटा मतलब tan 20 डिग्री, तो VF1 हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ से निकल जाएगा VF1। सिमिलरली क्या करेंगे, VF2 क्या हो जाएगा हम लोग का, VF2 इज इक्वल टू VF1 कर देंगे, हम लोग का VF2 निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे आउटलेट ऑफ ट्राइंगल पे, वहां पे tan फाई निकालेंगे, tan फाई के मदद से निकालेंगे ये चीज। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, tan फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का VF2 बाई अंडर ब्रैकेट U2 माइनस VW2 होगा। हाँ, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को VW2 निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को फाई का वैल्यू पता है, VF2 पता है, U2 पता है, तो VW2 निकाल देंगे। आप लोग इसको लिखते जाइए। ठीक है, VF2 हम लोग का ऐसे निकल जाएगा। ओके, सॉरी, VW2 निकल जाएगा। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, वर्क डन वाला। VF2 निकल गया, सॉरी VW2 निकल गया, तो उसमें पुट कर देंगे तो हम लोग का फिर वर्क डन भी निकल जाएगा। ठीक है, इसी स्टेप को फॉलो कीजिए, आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हमें बताइए कि समझ में आया कि नहीं या बना कि नहीं, तो फिर हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे फिर से। ओके, ये स्टेप को फॉलो कर लीजिए। तो इसके साथ में अब इस मीटिंग को खत्म कर रहा हूँ। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, फिर इसको अगले क्लास में 2 न्यूमेरिकल फिर से बनाएंगे, इसको बनाएंगे और अगला एक और बनाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा और समझ में आएगा। ओके, ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।